Good morning, students. Class 9, Chapter 2, Polynomials, Exercise 2.5. This is good exercise, and these types of sum we have done in previous class and those identities we will use here. We already used in class 8. So please start question number first, page number 48. See your book and now read the question. Question number first is use suitable identities. Use suitable identities to find the following product. See, this is very lengthy exercise and we solve one question for each part, and rest of the question you will do the practice at your home, and all the sum are very easy. Only use the identities and solve it, get the answer. See the question number first. X plus 4 into x plus 10. X plus 4 into x plus 10. Think about the identities. Which identities we will use? Yes. On using x plus a into x plus b is equal to x square plus x into a plus b plus ab, and here x is equal to x, a is equal to 4 and b is equal to 10. A is equal to 4, b is equal to 10 and x is equal to x. Got it? Start. This x plus a into x plus b will be the sum as it is. X plus 4 into x plus 10. Actually, in value as it is again, and x is equal to x, so x square plus x means x into a is equal to 4 plus b is equal to 10 and plus 4 multiplied by 10. ये एक सम लास्ट में इधर भी लिख सकते थे फार्मूला में ना, a plus b into x, and now x square plus 10 plus 4 is 14 multiplied by x is 14x plus 10 4 is 40. That is the answer. कोई डरने की जरूरत नहीं है. प्लस माइनस हो तो या माइनस 10 होता तो हम b is equal to minus 10 लिखते, तो minus 10 लिखते, सॉल्व हो जाता. फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में लिख दीजिए, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं. केवल वैल्यू आप पुट कीजिए और सिस्टमैटिक सॉल्व करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. See the question number 2 is evaluate the following product without multiplying directly. 103 multiplied by 107. Second or first. 103 multiplied by 107. Again we start using the identity. Firstly we convert the question in sum part. See, 103 means we can write 100 plus 3 multiply by means into 107. Okay, I'm using x plus a into x plus b, or see here we have comparatively. X is equal to 100, a is equal to 3 and b is equal to 7. Absolutely right. Understand? So this formula is equal to the same. x स्क्वायर प्लस इस x का मैं बोल रहा था कि हम बाद में लिख सकते हैं. पहले हम a प्लस b भी लिख सकते हैं इनटू x, ये हमने यहाँ की बजाय यहाँ लिखा, और प्लस ab. नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू. x मींस 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b मींस 3 प्लस 10 इनटू x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10. 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 का 4 0 हो जाएगा. 1 2 3 4 प्लस 7 प्लस 3. अच्छा यार x की वैल्यू को 100 लिखना था ना बेटा, इनटू 100. 7 प्लस 3 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, 7 प्लस 3 is 10. 10 multiplied by 100 is 1000.
plus 10 3 are 30. See, ones, tens, 100, 1000, 10,000. 10,000 plus 1,000, 11,000, 11,000, 30. Then 11,000, 100 is 0 and 30. This is the answer. आप 1 से नीचे 1 से लिखकर 8 करके कीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा. You are in 9th class, friends. You can understand easily. It is very simple. This type of sum we have done in the class 8. Now question number 3, C. Factorize the following using property identities. Third of first. C. 9x square plus 6xy plus y square. 9x square plus 6xy plus y square. Then C, we can use here also the identity. वैसे तो वैसे ही फैक्टर कर सकते थे, लेकिन हमको क्या बोला है इसमें, आप आइडेंटिटीज यूज कीजिएगा. तो हम 9x स्क्वायर, ये x का स्क्वायर 9 पे डी के राइट लिया 3x होल स्क्वायर एंड लास्ट वाली डी y स्क्वायर से ले लेते हैं. प्लस साइन में प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस लगता है. आपको मालूम है एक आइडेंटिटी लगती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 2 फार्मूले में 2 into a मतलब 3x मान लो into b मतलब y. देखो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, नहीं तो मल्टीप्लाई बाय 3 समझे. 2 3 द 6xy 6xy. देन यूजिंग आइडेंटिटीज कौन सी लग जाएगी बेटे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. अब इस आइडेंटिटीज में तो क्वेश्चन पूरा फिट हो गया. अब हम a प्लस b के फॉर्म में लिख देते हैं. a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, a इज इक्वल टू 3x प्लस b इज इक्वल टू y 3x प्लस y का होल स्क्वायर. और हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y. सी, अब क्या है, ये हमारा फैक्टर क्या फाइंड करना था, फैक्टराइज. फैक्टर हो गया ना फैक्टर. इट्स वेरी सिंपल. इस तरह हम आइडेंटिटीज यूज करना है. हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी लिख दिया. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटीज होती है जो कि a माइनस b के होल स्क्वायर की होती है. अब आगे क्वेश्चन करेंगे हम. अच्छा, इसका एक और बता देता हूं, थर्ड बहुत अच्छा है. थर्ड का थर्ड देख लीजिए. y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100. बहुत इजी क्वेश्चन होता है. सी, वी कैन राइट इट x स्क्वायर इज इक्वल माइनस ये y का स्क्वायर है 100 पे नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर. अब अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन y स्क्वायर अपॉन 100 आ जाएगा. अब आइडेंटिटीज यूज होगी using identities. a square minus b square is equal to a plus b into a minus b and a is equal to x. तो यहाँ लिखेंगे अब x plus y is equal b is equal to y upon 10 then y upon 10 into a minus b. a is x minus y is b is y upon 10 y upon 10. ये हो गया. इस तरह आपने देखा ना आइडेंटिटीज यूज करके कितने इजी क्वेश्चन होते हैं. फ्रैक्शन वगैरह डरना नहीं. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. आप क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक में देखें और उसको समझने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपने उसमें के क्वेश्चन पिछली क्लास में समझे किए एंड दीस आर ऑल द सम आर वेरी इजी. केवल बेटा आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए. हमारी कमजोरी यही होती है कि हम टेबल और फार्मूला पर फोकस नहीं करते हैं. आपको टेबल और फार्मूला बिल्कुल कंप्लीट याद रहना चाहिए. प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट केवल 20 तक एंड स्क्वायर और स्क्वायर रूट 50 तक याद रहना चाहिए. 50 तक, नॉट ओनली 30 150 तक. यही तो आपका नॉलेज है और ओरल रहना चाहिए, तब आपके समझ बना सकेंगे. अगर आपकी टेबल बढ़िया होगी तो आप एलसीएम वगैरह सब ओरल निकाल लेंगे. नहीं तो एक एक चीज करके देखना पड़ेगा. See the question number 4. Expand each of the following using suitable identities. Question number 4 the first.
Question is that x plus 2y plus 4z whole square, x plus 2y plus 4z whole square. अब आपको इसको एक्सपांड करके लिखना, विस्तार से लिखना है. यूजिंग आइडेंटिटीज इज ऑन यूजिंग ये आइडेंटिटी, ये सब फार्मूले है बेटे. हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर या a प्लस बी प्लस जेड का होल स्क्वायर. ए बी से बता देता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. अब आप a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू 4z फार्मूले में लिख दीजिए और सॉल्यूशन कंप्लीट. केवल आपको ध्यान से वैल्यू लिखना. a फॉर x स्क्वायर, a स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिएगा. b फॉर 2y, देन 2y का स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, 2y होल स्क्वायर प्लस c 4z होल स्क्वायर. z थोड़ा ठीक से लिखिएगा, 2 नहीं लिखिएगा, 4z होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a फॉर x, मल्टीप्लाई x के साइन में डिफरेंस होना चाहिए. 2a into b means 2y, okay, plus 2bc, 2 multiplied by b for 2y and c for 4z plus 2ca 2 multiplied by c for 4z multiplied by a for x. ये हो गया हमारा एक्सपांड फॉर्म. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 y स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4 4 द 16 z into z is z स्क्वायर. अब मल्टीप्लाई यहां से यहां तक है, इन तीनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. 2 टू द 4 xy प्लस 4 xy, फिर यहां से 2bc, ये 2bc, यहां से यहां तक का मल्टीप्लाई प्लस साइन है प्लस 2 टू द 4 4 4 द 16 yz, देन अगेन प्लस साइन प्लस और इन तीनों का मल्टीप्लाई. 4 टू जाएगा 2 4 जाए zx xz कुछ भी लिख सकते हैं, zx. बस यही इसका आंसर है. दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. इस तरह आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगर माइनस का होगा तो आप देखना कि किस दो डिजिट में माइनस आ रहा है. अगर आपको ए बी सी में से किसी की वैल्यू माइनस हो तो आप उसकी वैल्यू माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेयर a is equal to x, b is equal to 2y and c is equal to 4z. और अगर माइनस का हो या सपोज कीजिए माइनस 4z है तो इसके आगे माइनस 4z लगा दीजिए. b का साइन माइनस का हो, b पर माइनस लगा दीजिए. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. See the question number 5 please in your book. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा. फैक्टराइज. अब आपको इस तरीके फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन फॉर्म में दिया है और ऐसा फैक्टराइज में हमको ऐसा क्वेश्चन कन्वर्ट करना है. और पावर 2 है तो हम 2 टाइम लिख देंगे इसको, ये के डिजिट 2 टाइम लिखा जाएगा तो फैक्टर हो गया. तो इस तरह से क्वेश्चन दिया, उसको रिवर्स करके फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे. लेट अस स्टार्ट. चलिए देखते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. मैं इसके नीचे इसलिए लिख रहा हूं कि आपको डिजिट देखने में थोड़ा कंफ्यूज ना हो. बड़े समय हम फोर्थ क्वेश्चन फैक्टराइज करते हैं. ये प्रोडक्ट था, हमने अब फैक्टराइज करना है. क्वेश्चन नंबर 5 और फर्स्ट. see the digit carefully. 4x square plus 9y square, 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy
minus 24yz minus 24yz minus 16zx। अब आप यहां पर ध्यान से देखो बेटे, यहां माइनस साइन है, यहां माइनस साइन है, यहां पर हमें पता ही नहीं लगेगा ये तो सब प्लस के। अगर मैं इसको लिखूं फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये x के स्क्वायर है, तो यहां पर हमने लिख दिया 2x होल स्क्वायर प्लस y पर स्क्वायर है, 9 पर नहीं है तो 3y होल स्क्वायर प्लस z पर स्क्वायर है, 16 पर नहीं तो 4z होल स्क्वायर। अब आप माइनस का साइन समझिएगा, प्लस 12xy, तो 12 तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 2xy, 2x a मींस व्हाट 2x। फार्मूला दिमाग में रखना है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो चुका प्लस 2ab, b मींस 3 भाई। अब आप देखिए 2 टू 4 4 3 12 12xy और प्लस है मतलब प्लस है। इससे हमें कंफर्म हो गया कि a और b की वैल्यू प्लस की है, क्लियर, क्योंकि इसमें a भी था। अब यहां साइन है माइनस, अब हमने माइनस का देखना है, तो y यहां आ चुका हमारे पास है ना, तो y प्लस का था, यहां z है, यानी z की डिजिट माइनस की होगी तभी जाकर z माइनस का होगा, तभी हमको यहां माइनस का मिलेगा। इसलिए मैं यहां पर जो साइन है वो माइनस लिखूंगा, माइनस 4z होल स्क्वायर। तो ये अब आपको y की वैल्यू, z की वैल्यू क्या रहेगी माइनस 4z, यानी c की वैल्यू मतलब a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू माइनस 4z। तो अब हमें चाहिए 2ab प्लस 2bc, तो 2 इंटू b मतलब b मीन्स व्हाट 3y इंटू c, c मीन्स व्हाट, c मीन्स माइनस 4z। अब आप इनका प्रोडक्ट तो देखिए 2 3 जा 6, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और प्लस इंटू माइनस इज माइनस 24 yz आ गया सामने, इसलिए z की वैल्यू माइनस एंड प्लस 2ca 2 into c for minus 4z मल्टीप्लाई बाय a for 2x। देखिए आप एक मिनट चेक कर लीजिए, 2 4 जा 8 8 2 जा 16 प्लस इंटू माइनस इज माइनस माइनस 16 एंड zx आ गया समझ। और ये किसके इक्वल है, फार्मूला यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर, अंडरस्टैंड, c माइनस की वैल्यू अभी अपन प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये पूरा फार्मूला हो गया। और यहाँ पर c का है माइनस का, z की वैल्यू माइनस की है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2bc माइनस 2ca, क्योंकि c जहाँ लगा हुआ है वहाँ माइनस का साइन हो गया, इज इक्वल टू होता है अपना a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर, क्योंकि c की डिजिट माइनस की, देन a इज 2x प्लस b फॉर 3y एंड माइनस 4z, ये c की वैल्यू होल स्क्वायर। अब इसका फैक्टराइज करना है, इसको 2 टाइम लिखेंगे, सो देयरफॉर 2x plus 3y minus 4z into 2x plus 3y minus 4z. Understand, students? So this is question number 5 is over. Now we start question number 6. It is also very simple question. So let us start. You have to note this sum in your field copy. Now we start question number 6. Six are first 2x plus 1 whole cube, 2x plus 1 whole cube
on using a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। ये फार्मूला हम यूज करेंगे और हमें क्या फाइंड करना है इसमें, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म आ जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर कंपेयर कर लिया a is equal to 2x, therefore a is equal to 2x and b is equal to 1। अब a और b की वैल्यू लिख कर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a is equal to 2x whole cube plus 1 whole cube plus 3 multiplied by 2x multiplied by 1, this is 3ab into a for 3x plus b for 1। now 2 का क्यूब करेंगे तो 8, ऐसा मत कर दीजिएगा 2 3 या 6, 2 क्यूब means 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 2 to the 4 4 to the 8 and x cube will be x cube, okay। now plus 1 cube is equal to 1, 1 का कितना भी पावर होगी आंसर 1 ही आएगा and this will multiply 3 to the 6, 6 1 the 6x, 6x into 3x plus 1। अब हम 6x का मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x मल्टीप्लाई बाय 3x, 6 3 जा 18, x into x is x square and plus 6x मल्टीप्लाई बाय 1 is plus 6x। अब इसको अरेंजिंग प्रॉपर ऑर्डर में कर देते हैं, x डिसेंडिंग पावर में 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये भी आंसर सही है, आइदर दिस विल बी आंसर करेक्ट, दोनों ही सही है, दिस इज आंसर। सो यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास क्वेश्चन 6 is over। now question number 7, evaluate the following using suitable identities। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज, सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करते हुए उसकी वैल्यू फाइंड करना है। अभी ये वेरिएबल के साथ था, अब बिजी टू क्वेश्चन है, हमको यही आइडेंटिटीज यूज करना है, बट कैसे, सी, इसलिए मैं आइडेंटिटीज रफ नहीं करूंगा। चलिए प्लस किया तो माइनस अब यूज करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सी का क्वेश्चन नंबर 7 आप फर्स्ट 99 whole cube, right? 99 whole cube है ना, yes, 99 whole cube। these are the students, अब इस आइडेंटिटी यूज करना आपको, we can write 99 as 100 minus 1 whole cube। अब हम कौन से आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम यूजिंग a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a plus b, okay। this will be the identities we will use, and now we have to start, this is 100 minus 1 whole cube is equal to 100 cube minus 1 cube minus 3 multiplied by 100 multiplied by b for 1 into multiplied by 100 plus 1। firstly I will check this identities, ये आपका यहाँ पर माइनस तो नहीं है, मैं भी चेक कर रहा हूँ, आप भी चेक कर लीजिए तो बेटा, 1 मिनट है प्लीज। a minus b का होल क्यूब में चेक करेंगे अपन, see the identities a minus b, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, a minus b ही आएगा बेटा, a minus b, and now solve it। 100 क्यूब, तो यहाँ पर 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 पेयर में 2 2 0, फिर 1 2 3 4 5 6 0, minus 1 का क्यूब is 1 minus 3 multiplied by 100 is 300
एंड 3 1 या 3 हुई, होता ही है, मल्टीप्लाई बाय 99. नाउ once tens 100 1000 10,000 10 lakh 1 2 3 4 5 6 minus 1 cube is 1 and 300 multiplied by 99. 3 9 are 27 minus sign will come here. 3 9 are 27 7 carry 2 3 9 are 27 plus 2 29 and 2 0. See, this is 10 lakh. 1 2 3 4 5 6 29,700 माइनस के और 1 भी माइनस का दोनों डिजिट ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 29,701. अब 10 लाख में से 29,701 माइनस कर ले. 1 2 3 4 5 6 once 10 100 1000 10,000 10 lakh and 29,701 will be minus. 10 minus 1 is 9. 9 minus 0 is 9. 9 minus 7 is 2. 9 minus 9 is 0. 9 minus 2 is 7. This will be 9 and this will be 1. So 19 lakh. Sorry, this will be 0. 9,70,299. 9,70,299. This will be answer. अगर कहीं कुछ आंसर में मिस्टेक हो तो आप प्लस माइनस करके देख लेंगे. इस तरीके से सभी रेस्ट ऑफ द सम यू हैव टू डू इट. ये बिल्कुल सब ऐसे फार्मूले होंगे. क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज इज आल्सो फॉलोइंग 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6b स्क्वायर. ये एक फार्मूला लगेगा बट प्लस वाला लगेगा क्योंकि वो 12a स्क्वायर इसलिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया है और इधर इसमें तो स्क्वायर हो जाता है. a into a is a square और b into b is b square, राइट. इस फार्मूले को कन्वर्ट किया गया है. फार्मूला सिर्फ 8 क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा. a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. इस तरह से 8 क्वेश्चन होगा. 9th क्वेश्चन भी फार्मूले से ये बहुत सिंपल है. 10 भी यू शुड बी ट्राई ऑन योर लेवल. ओके, अभी आज के लिए 7 तक sufficient. Thank you very much and do it in your free copy also and do the practice. Okay.